Okay, so I think before Diwali already we have started our second unit. Okay, that is the complex number, a complex variable. Your actual title is calculus of complex function, I think. Okay, so I quickly go through all those content one more time, and then we'll start a new topic today, which is complex integration. Okay, so is this screen visible to you all? Is it visible? Yes. Okay. So z equal to x plus iy. This is the representation of complex number in Cartesian form, where x is the real part, y is the imaginary part. That same complex number can be represented in polar form as z equal to r in bracket cos theta plus I sin theta, where r is called as, what is r? What is r? Tell me fast. What is r here? R is modulus, correct? And what is theta? Theta is what? Argument or amplitude. Okay. So, and there is one more way to write the given complex number, that is nothing but the exponential form. So in that we have to just replace this cos theta plus I sin theta by e raised to I theta. This is the exponential form. Okay. Then modulus of complex number, that is mod z is equal to under root of x square plus y square. Amplitude or the angle of complex number, that is theta, is equal to tan inverse of y upon x. Okay, I will skip this logarithmic part. Okay, not that much important as for your syllabus. Then our next part is the function of complex number. So as we know that z is equal to x plus iy. Okay, just 1 minute. So z is equal to x plus iy. This is the complex number. This is the number, you can say. Okay, and how you write the corresponding complex function. This is the complex number. Now we have to write the complex function. So what is that complex function? It is generally denoted by f of z, and it is equal to some u, some function in x and y, plus I times some function in x and y. Okay, this is the representation of complex function. F of z is equal to u of x y. U is the function in x and y plus I times v of x y. This is generally called as the complex function. Okay, and after that I think our first definition is analytic function. So can anyone tell me what is the meaning of analytic function, or what is the actual definition, or what is meant by analytic function? Yes, anyone? What do you know about analytic function? Anyone? What do you understand about the analytic function? बहुत बार हमने रिपीट किया था. Yes. हाँ. Those function which satisfy CR equation. Very good. Okay, it is a function which satisfies CR equation. Correct. That is the mathematical condition to check whether given function is analytic or not. But what is the general meaning of analytic function? If given function is analytic, it means what? It means what? Its derivative exists at Yes. point. Okay. Very good. Okay. So it means it is a differentiable function. Its derivatives exist. Okay. As I already told you, the purpose of this unit is to understand how we take the derivative and integration of a complex function. So in first section we have to focus more on the derivative part, and then in next section, maybe in today's lecture itself, we'll focus on the integral part. And remember, your real integral is totally different from your complex integral. Okay, आपको आगे समझ में आ जाएगा. So analytic function, no need to remember this pure mathematics definition. Okay, you have to just understand an analytic function. It simply means it's a differentiable function, and how you mathematically check whether this given function is analytic or not. So there are two ways. Okay, if your function is defined in terms of x and y, okay, in terms of x and y, that is called as the Cartesian form, then your CR equations are this: ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. Remember, okay, इस पे हमने बहुत सारे examples already cover किए थे दिवाली के पहले. So these are your CR equations in Cartesian form, and what are the CR equations in polar form? So these are the CR equation in polar form. You can remember like this, or आपको R
को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके भी आप इसको इजीली लिख सकते हो. सो दैट बिकम आर यू आर इज इक्वल टू वी थीटा, एंड नाउ जस्ट इंटरचेंज यू एंड वी. सो आर वी आर is equal to minus u theta and give the minus sign. That is your second equation. Okay, just interchange u and v and give the minus sign. So these are the CR equation when your given function is defined in terms of r and theta, that is called as polar coordinates or polar form. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Any doubt up to this part? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरा ये टॉपिक. Any doubt up to this part? कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और एनालिटिक फंक्शन चेक कैसे करना है. इज इट क्लियर? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Other student at least say yes or no, so मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आगे जाने के लिए. Okay. Now the next is what अब ये मैं अलग मतलब ये एक्चुअल मेरे नोट्स है, वहाँ से मैं ले रहा हूँ एंड ऑलरेडी मैंने एक PDF भी आपसे शेयर की थी. दोनों का मीनिंग सेम है, आपको जिससे रेफर करना आप करो, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा इन डिटेल में दिया है. ओके. So in general, how you write your f dash of z? Okay, f dash of z means the derivative of a function. Okay, so see, if f of z is equal to u plus iv, this is your given function. Okay, if f of z which is equal to u plus iv is your given function, then how you write the f dash of z? वो बस मैंने यहाँ पे दिया. Okay, not at all difficult. So how you write the f dash of z? So it is simply ux plus I times vx. इतना ही दिया है मैंने इस रिजल्ट में, ux plus I times vx. ये बाय CR इक्वेशन चेंज हो रहा है. नो नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट द CR इक्वेशन. सो वट एवर चेंज इज देयर अकॉर्डिंग टू CR इक्वेशन दैट यू कैन डू यूजिंग डिपेंड ऑन दी गिवन एग्जाम्पल. वो आप गिवन एग्जाम्पल से वो चेंज करते हो. मतलब u गिवन है तो आप u के वैल्यूज रिप्लेस करते हो, अगर v गिवन है तो आप v के वैल्यूज रिप्लेस करते हो. ओके, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर ओनली दिस फॉर्मूला. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ z. ओके, इन कार्टेशियन फॉर्म ux प्लस i टाइम्स vx. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया. ओके, ये आपको मैंने उस टाइम पे भी बोला था, पोलर में आपको ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है. But still, if you want to remember what is the value of f dash of z in polar, so this is the value. Okay, it is not मतलब आप इससे जनरलाइज करने की कोशिश करते हो ना, तो पोलर में आपका केस होगा, ऑब्वियस आपका केस होगा यही यू आर प्लस आई टाइम्स वी आर. नो, ठीक है, बट इन केस ऑफ पोलर, ओके, द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ जेड यही है, बट इसको आपको मल्टीप्लाई करना है ई रेज टू माइनस आई थीटा फैक्टर से. देयर इज अ सेपरेट प्रूफ ऑफ दिस. आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल दैट पार्ट. ओके, ये भी कुछ डायरेक्टली नहीं लिखा, उसके पीछे एक प्रूफ है. एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस कैपिटल यू प्लस आई टाइम्स, मतलब इसको कैपिटल यू प्लस आई टाइम्स कैपिटल वी कंसिडर करके फिर यू के लिए सॉल्व किया, वी के लिए सॉल्व किया. यू की वैल्यू यू एक्स आती है, वी की वैल्यू वी एक्स आती है. ये ऐसा प्रूफ है उसके पीछे. सो बट ज़रूरत नहीं है प्रूफ को रेफर करने की भी. या सो आई थिंक अब ये दो रिजल्ट आपको समझ में आ रहे हैं. एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, नाउ दैट पार्ट इज क्लियर. नेक्स्ट इज कार्टेशियन फॉर्म में एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, यू एक्स प्लस आई टाइम्स वी एक्स. जो मैं बोल रहा हूँ उसी सीक्वेंस से आप याद रखो तो ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं जाएगा. नेक्स्ट इज वॉट द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ जेड इन पोलर फॉर्म. इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट यू कैन रिमेंबर, क्योंकि एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. ठीक है, 1 मार्क के लिए. सो ई रेज़ टू माइनस आई थीटा इन ब्रैकेट यू आर प्लस आई टाइम्स वी आर. ओके, next so there are few results that if you have a rational function f of z upon z of z, है ना, ऐसा अगर आपके पास फंक्शन है, then this function is analytic when your denominator is non-zero. ठीक है, simple result है, this function is analytic when your denominator is non-zero. So for example, if I consider 1 upon z, so this function is analytic for z not equal to 0. यही सिंपल मीनिंग है. सो दिस फंक्शन इज एनालिटिक व्हेन योर z इज नॉट इक्वल टू 0. व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? दिस फंक्शन इज एनालिटिक व्हेन z, यस, 1 अपॉन not equal to 1. देन आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए. इफ इट इज 0 देन योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, है ना. सो ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंटीग्रल का पार्ट है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, उसमें मुझे ये रिजल्ट यूज़ करना है. ओके, रिजल्ट सिंपल है. ओके, इन केस ऑफ रैशनल फंक्शन,
Okay, or simply a rational function is analytic provided your denominator is non-zero. Non-zero denominator के लिए ही वो analytic होता है. इतना simple result है. नेक्स्ट इज एवरी पॉलिनोमियल इज एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल फंक्शन. और आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन को आप कितने बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो. ओके, कुछ स्टेज के बाद डेरिवेटिव जीरो आता है, जीरो आने दो ना, बट जीरो का डेरिवेटिव फिर से जीरो आ जाएगा, बट यू कैन डिफरेंशिएट दैट फंक्शन इनफाइनेटली मेनी टाइम्स. कहीं भी आपको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं आती. देयरफॉर एवरी polynomial function is analytic function. That is the in general. Okay, it is for complex case also, it is for real case also. Every polynomial function is analytic function. Again, it's only for MCQ purpose. Next, f of z equal to u plus iv is analytic, then u and v are harmonic conjugates. शायद ये टॉपिक हमने सेपरेटली लर्न किया था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का पार्ट. ओके, सो लेट मी नाउ फोकस ऑन दैट पार्ट फर्स्ट. लेट मी टेक वन पेज. शायद मैंने उस PDF से एक्सप्लेन किया था. या हाँ, सो नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट. पहले मैं देखता हूँ कि आपको कितना याद आ रहा है हार्मोनिक कॉन्जुगेट. यस, बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट? एनीवन? Let f of z is equal to u plus iv be analytic function. अभी बोलो, what is mean by harmonic conjugate? हाँ, what is mean by harmonic conjugate? Yes, बोलो. If f of z equal to u plus iv is analytic function, what is the harmonic conjugate of u? u का harmonic conjugate क्या है? What is the harmonic conjugate of u? हाँ, याद आ रही कि नहीं डेफिनेशन? v. सी वर्डिंग पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है. हार्मोनिक कॉन्जुगेट का f ऑफ z इक्वल टू u प्लस iv अगर आपके पास एनालिटिक फंक्शन है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो u इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v एंड v इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u. ये बस ऐसे होता है, मतलब u गिवन है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v होता है, अगर v गिवन है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट u होता है. सो द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u इज v, जो मिसिंग है वो, एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v इज u. इतना ही है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट. ओके, इतना आपको याद रखना है. इफ वी हैव गिवन अ रियल part of that complex number, then its harmonic conjugate is imaginary part, provided that function is analytic function. ये सारा मैं analytic के केस में बोल रहा हूँ. If you have given the imaginary part, v is given, then its harmonic conjugate is u. Okay, अभी जो मुझे चाहिए वो मेथड चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल let u is equal to, let us take x square minus y square. This is let u equal to x square minus y square is the real part of analytic function f of z equal to u plus iv. Okay, and question क्या है? find हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u मीन्स व्हाट? क्या करना है? कैलकुलेट. ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने वाले ऑनलाइन में, एमसीक्यू के केस में. यस, या थियरी में, तो थियरी में भी ऐसे एज इट इज आएंगे आपको. यस, एनीवन? u गिवन है विच इज द रियल पार्ट ऑफ योर एनालिटिक फंक्शन इन जनरल f of z इक्वल टू u प्लस iv. ये तो आप याद ही रखो, f of z इज इक्वल टू u प्लस iv. ठीक है, एंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u मींस व्हाट? क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट क्या करना है? v कैलकुलेट करना है. अभी आप बोलो मुझे कैसे करोगे? ये मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था और उस टाइम पे भी बोला था दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक. नाउ यू टेल मी हाउ वी फाइंड दैट v. मुझे आपसे ही चाहिए आंसर. बोलो, v कैलकुलेट करना है. दैट इज द Firstly, find CR equation. Okay, very good. So as we know that f of z is equal to u plus iv, this function is analytic. Okay, so it satisfies CR equation.
So from that result you will get ux is equal to vy and uy is equal to na ux equal to vy and uy is equal to minus vx. Okay, next these are the CR equation. Next क्या करोगे आप? टेल मी अ प्रोसेस फास्ट. स्टेप 1 आपको एनालिटिक फंक्शन गिवन था, उससे आपने CR इक्वेशन को मेंशन किया, करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? नेक्स्ट क्या करना होगा मुझे? हाँ, तो आपके पास CR इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के लिए ऑलरेडी वी हैव गिवन u. आपके पास u की वैल्यू है. ओके, सो इफ u इक्वल टू दिस, इफ u इक्वल टू x square plus y square, what this implies? What is your ux? 2x. What is your uy? 2y. ओके, अभी क्या करना होगा मुझे? किसी एक इक्वेशन से मुझे जाना है ना. टेक एनी वन इक्वेशन. सो लेट अस टेक दिस इक्वेशन. सो ux इज इक्वल टू vy. सो दैट u गिवन है, तो आपको v यहाँ पे कैलकुलेट करना है. सो व्हाट वी नो फ्रॉम द CR इक्वेशंस दैट ux इक्वल टू vy. सो vy इज इक्वल टू this. Okay, I think हम करेक्ट ही जा रहे थे. So vy is equal to this, that is dy by x. So dy by x is x upon x square plus y square. Now integrating on both side. So v is equal to integration of this dy plus f of x, correct? So while integrating this with respect to y, okay, आपका x क्या होगा? कांस्टेंट होगा. x आपका बाहर आने वाला है, एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. So while integrating with respect to y, your x is constant. So it is simply 1 upon some constant square plus variable square. What is this? 1 upon a square plus x square का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 upon a square plus x square का इंटीग्रेशन. 1 upon a square plus x square का इंटीग्रेशन याद नहीं? 1 upon y tan inverse of x by y. 1 upon a square x square dx is 1 upon a tan inverse of x by a, है ना. this is your regular formula. So 1 upon a, एक constant मतलब x है यहाँ पे. So 1 upon a tan inverse of x upon a मतलब y upon x plus your f of x. So this x will get cancelled. You will get only tan inverse of y upon x plus f of x. Okay, and now I have to use the second equation. So differentiate v with respect to x. Okay. So that gives me tan inverse का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square, है ना, and multiply by derivative of bracket term with respect to x, so which is 1 by y. तो ये y कैंसिल होकर आपको ये मिल रहा है. So it is a simple derivative, okay, plus f dash of x, okay, and then if I use this equation you will get this, and f dash of x is 0. हाँ, अभी कर लेते हैं एक बार, ठीक है. तो हम करेक्ट ही था, हमारा रॉन्ग नहीं था. शायद पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी. अभी मुझे समझ में आ रही है मिस्टेक क्या थी आपको. ओके, सो लेट मी स्टार्ट अगेन. जब तक नहीं होता तब तक हम आगे नहीं जाएंगे. सो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड v. मैं सिंपल एग्जांपल पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए. हाँ, सो एज वी नो दैट f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस iv इज एनालिटिक. So it satisfies CR equation, so which are ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. Okay, so as we have given u, so we can find ux which is 2x, we can find uy which is minus 2y. ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. Now if I use this first equation, so from that first equation I will get here vy is equal to 2x, that is dabba v by dabba y is equal to 2x. या इसके आगे मिस्टेक की थी मैंने. नाउ इंटीग्रेटिंग, बोलो, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यस, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. अरे इसको कैंसिल करने के लिए मुझे किससे इंटीग्रेट करना होगा? हाँ, आर यू देयर और नॉट? y. y, ठीक है.
नीचे जो वेरिएबल है उससे आपको इंटीग्रेट करना है. सो देन यू विल गेट हियर v इज इक्वल टू 2x. क्या लिखना होगा मुझे? dy. तो जब आप y से इंटीग्रेट करते हो तब आप f ऑफ x ऐड कर सकते हो. ठीक है, जब आप y से इंटीग्रेट करते हो इन दैट केस यू कैन ऐड दिस f ऑफ x. ओके, नाउ सो v इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज दिस? क्या होगा ये? बोलो. 2xy. ये मिस हुआ था और आपने नहीं बोला ये. प्लस f ऑफ x. ठीक है, सो v इज इक्वल टू 2xy प्लस f ऑफ x. स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहला इक्वेशन का मैंने यूज किया. नाउ कम टू सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है? uy इज इक्वल टू माइनस vx, है ना. तो इफ आई यूज दिस सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, सो कॉल इट एज 1, कॉल इट एज 2. क्या है वो? uy इक्वल टू माइनस vx. uy इज इक्वल टू माइनस vx. अभी सारे वैल्यूज पुट करते हैं ना. uy की वैल्यू क्या है? uy इज माइनस 2y. माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस, टेल मी vx नाउ. टेल मी vx. बोलो. टेल मी vx. 2y plus f dash of x. ओके, एंड नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन यू विल गेट, सॉरी लिख लेता हूँ एक बार में. सो माइनस 2y is equal to minus 2y is equal to minus f dash of x. So this will cancel with each other. You will get what? f dash of x is equal to 0. मुझे कैसे ये मिस्टेक समझ में आ गई थी, क्योंकि जो f dash of x फंक्शन है वो एक ही वेरिएबल में आना चाहिए. यहाँ पे जो आंसर होगा, अगर 0 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो नॉन जीरो वैल्यू आती है ना, सो दैट मस्ट बी इन x. दैट मस्ट बी इन x. अगर वहाँ पे कहीं पे y आता है तो आपने कहीं पे ऊपर मिस्टेक की है. तो वही मुझे वही पे क्लिक हुआ था, क्योंकि मेरा जो आंसर आ रहा था वो 2x माइनस 2y आ रहा था. कैसे पॉसिबल है ही नहीं, f ऑफ x का फंक्शन कैसे y में जाएगा. ठीक है, सो इट मीन्स कहीं पर ना कहीं पे आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई. सो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है, ओके, एंड दैट गिव्स मी व्हाट इज f ऑफ x. इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे? f ऑफ x इक्वल टू 0 dx प्लस सम कांस्टेंट. अभी मुझे c ऐड करना है, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है वो एक मतलब इट कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये पार्शियल नहीं है. दिस इज नॉट अ पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज योर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में आप c ऐड करते हो, पार्शियल में आप फंक्शन ऐड करते हो. ठीक है, सो f ऑफ x इक्वल टू c एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. सो v इज इक्वल टू 2xy प्लस c. ये हमारी प्रोसेस थी कॉन्जुगेट कैलकुलेट करने की. ओके, इज इट क्लियर नाउ? प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं है. कैलकुलेशन की मिस्टेक अगर हो जाती है, जैसे अभी मेरे भी हुई थी, ऐसा कुछ है तो यू हैव टू चेक वन मोर टाइम. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ वेदर दिस प्रोसेस इज क्लियर, सो दैट आई कैन गो विद द नेक्स्ट मेथड. इज दिस क्लियर? बोलो यस और नो. इसके सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट सेशन में. आप लास्ट रिकॉर्डिंग आप देखो एक बार. इसमें कुछ डाउट है, इस मेथड में कुछ डाउट्स है? यू वांट मी टू टेक वन मोर एग्जांपल? कैन आई टेक वन एग्जांपल ऑन पोलर? पोलर पे एक एग्जांपल लेना है क्या? बोलो. यस सर. ओके, सो एक पोलर पे लेते. ओके, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल और नॉट. सो फाइंड, सेम प्रोसेस से क्या, पहले मुझे देखने दो, नहीं तो फिर मैं, हाँ चलो ये कर लेते हैं एक बार. फाइंड द एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी वेयर u इक्वल टू दिस. इसका मीनिंग क्या है? मैंने आपको बोला देयर आर मेनी वेज टू आस्क दिस क्वेश्चन. एक तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैलकुलेट करने का आएगा, या तो एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करने का आएगा, बट सबका मीनिंग क्या होता है? u गिवन है तो v कैलकुलेट करो, v गिवन है तो u कैलकुलेट करो. जस्ट रिमेंबर लाइक दिस. ओके, सो क्या करना है यहाँ पे आपको? व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? क्या कैलकुलेट करना है? एनालिटिक फंक्शन चाहिए और आपके पास u गिवन है. इट मीन्स व्हाट? क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड v. है ना, तो आपको यहाँ पे v कैलकुलेट करना है. ओके, एंड हियर वी हैव गिवन दिस फंक्शन, दिस u इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पोलर. राइट नाउ दिस वैल्यू इज देयर इन टर्म्स ऑफ पोलर, है ना, वही मैंने लिखा है यहाँ पे. इसलिए जो CR इक्वेशन आप कंसिडर करोगे, दैट आल्सो यू हैव टू कंसिडर इन टर्म्स ऑफ पोलर. ओके, एंड व्हाट आर दी CR इक्वेशन इन पोलर? ये आपको याद रखना होगा, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है. u r इक्वल टू, मैंने आपको शायद ऐसे याद रखने के लिए बोला है, r u r
इज इक्वल टू वी थीटा एंड आर, बस यू एंड वी को चेंज करना है, वी आर इज इक्वल टू माइनस यू थीटा. सो इन द यूजिंग दिस ऑल्सो यू कैन राइट डाउन दिस. ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है, आपके पास u की वैल्यू है तो u को एक बार r से डिफरेंशिएट करो. दैट इज ट्रिवियल. व्हेन यू डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू r, योर थीटा इज कांस्टेंट, सो यू विल गेट हियर 3r स्क्वायर cos थीटा, 3r स्क्वायर cos थीटा एंड r sin थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r इज जस्ट sin थीटा, क्योंकि r का 1 आता है, sin थीटा वैसे भी कांस्टेंट है. You get u का with respect to r. Now u का with respect to theta. So r is constant when you differentiate with respect to theta. So cos 3 theta का derivative minus 3 sin 3 theta and sin theta का derivative cos theta. Okay. So these two are the derivatives of u with respect to r and with respect to theta. चलो ये एक पार्ट हो गया. अभी पहला इक्वेशन कंसिडर करते हैं. Okay. So in that first equation आपके पास डेबा यू बाई डेबा आर की वैल्यू है, तो आप वो एज इट इज पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, 1 बाई आर डेबा वी बाई डेबा थीटा इज इक्वल टू दिस, है ना. आर से मल्टीप्लाई करो बिकॉज आई डोंट वांट आर ऑन एलएचएस, सो इफ आई मल्टीप्लाई विद आर यू विल गेट दिस. सो डेबा वी बाई डेबा थीटा फ्रॉम अ फर्स्ट इक्वेशन यू विल गेट डेबा वी बाई डेबा थीटा इक्वल टू दिस. ओके, बट मुझे चाहिए वी. सो व्हाट इज माई नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा जो नीचे है उससे ही आपको इंटीग्रेट करना है ना. सो since I want v, so I have to integrate this with respect to theta. तो मुझे क्या मिलेगा बोलो. Can anyone tell me the next step? This is important. Can anyone tell me the next step when I integrate this with respect to theta? बोलो. v is equal to what? हाँ बोलो जल्दी. v is equal to what? अगर मैं थीटा से इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या कांस्टेंट होगा, r कांस्टेंट होगा, है ना. सो क्या आएगा इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करो थीटा से वेर r इज कांस्टेंट, सो 3r स्क्वायर वैसा ही रहेगा. cos 3 थीटा का इंटीग्रेशन Sin sin 3 theta by 3. वेरी गुड, प्लस r वैसा ही रहेगा, sin थीटा का डेरिवेटिव sin थीटा minus माइनस cos थीटा. ठीक है, सॉरी डेरिवेटिव में, सॉरी इंटीग्रेशन है ना. सो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, प्लस क्या ऐड करना है, जब आप हाँ वेरी गुड, यही इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है. तो जब आप थीटा से इंटीग्रेट करते हो आर आपका कांस्टेंट होगा, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ आर आएगा, फंक्शन आ जाएगा वहाँ पे. ठीक है, सो इट इज़ देयर, मैंने प्रॉपर कैलकुलेट करके दिया है. हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट. तो यही आपका एक्चुअल फाइनल आंसर है. इसमें आपको बस एफ ऑफ आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और एफ ऑफ आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अभी आपको सेकंड इक्वेशन यूज करना है. सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, ये दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, आर वी आर इक्वल टू माइनस यू थीटा. तो सेकंड इक्वेशन क्या था, आर वी आर इज इक्वल टू माइनस यू थीटा. तो आपको वी को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करना होगा. So that derivative of v with respect to r is 3r square, theta is constant, minus cos theta f dash of r. Okay, and now we know that the value of vr is minus 1 upon r u theta. But आपने डेबा u by डेबा थीटा ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया था, यहाँ पे होगा कहीं पे. दिस इज द वैल्यू ऑफ डेबा u by डेबा थीटा. एज इट इज वैल्यू पुट करो, माइनस 1 by r से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. ये जनरली कैंसिल हो जाते हैं. Okay, so this value will get cancelled with this value and you will get f dash of r is equal to 0. f dash of r equal to 0 तो आपका f of r क्या होगा, दिस इंटीग्रल प्लस c. यहाँ पे c क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, पार्शियल नहीं है, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, इसलिए c आएगा. सो दैट इंप्लाइज f of r इक्वल टू c. ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे पुट करो, f of r की जगह पे c हो गया. इज इट क्लियर नाउ? इस मेथड में अभी कोई डाउट है या कोई एक और एग्जांपल लेना तो वैसे भी बोल दो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट. इज दिस क्लियर नाउ? टेल मी यस और नो लाउडली. Yes, sir. Okay. So now let me move to the next method. Okay. जिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ और यहाँ से लेता हूँ तो आपको रीडिंग करते समय भी समझ में आ जाएगा. So
दिस इज द वन मोर वे ओके टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जो मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन की थी उस मेथड में बेसिकली क्या होता है, अगर आपको u गिवन है तो आप v कैलकुलेट करते हो एंड देन यू विल गेट दैट एनालिटिक फंक्शन है ना, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू की वैल्यू रखो, i टाइम्स v की वैल्यू रखो, एंड हाउ यू गेट दैट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ z। आप z में कैसे कैलकुलेट करते हो फंक्शन, वो भी हमने देखा है लास्ट टाइम, है ना। आप z में कैसे कैलकुलेट करते हो फंक्शन, मैं कोई एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो है ना, ये आपकी u की वैल्यू थी, आपने v कैलकुलेट किया है, सो यू विल गेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी प्लस दैट सी एज इट इज ओके, आई टाइम्स दिस होल टर्म। तो आप इसके आगे एफ ऑफ जेड को जेड में कैसे कैलकुलेट करते हो, इन टर्म्स ऑफ जेड कैसे कैलकुलेट करते हो, बाय मिलनेस थॉमसन मेथड। x इक्वल टू जेड रखो, y इक्वल टू 0 रखो, यू विल गेट दैट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड। आपका ये एम था, आपको एट द एंड एफ ऑफ जेड चाहिए था। ओके, तो u गिवन था, v कैलकुलेट करो, फिर u प्लस आई वी में u की वैल्यू v की वैल्यू पुट करो, फिर x इक्वल टू जेड, y इक्वल टू 0 पुट करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। ये आपका रेगुलर अप्रोच था। व्हाट अबाउट पोलर, पोलर में क्या करना पड़ता है आपको, r इक्वल टू व्हाट एंड थीटा इक्वल टू व्हाट इन मिलनेस थॉमसन मेथड। पोलर में क्या करते हो आप, r इक्वल टू क्या रखते हो z, थीटा इक्वल टू 0। जो कार्टेशियन के लिए वही पोलर के लिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, ये हमारी मेथड थी अभी तक। अगर आप इससे कंफर्टेबल हो, यू कैन गो विद दिस मेथड। ये सिलेबस में ही इसलिए मैं ले रहा हूँ। नाउ लेट मी टेल यू द नेक्स्ट मेथड। अभी नेक्स्ट मेथड क्या है, यहाँ पे भी क्वेश्चन में एट द एंड आपके पास एक तो u गिवन होगा या तो आपके पास v गिवन होगा, ये तो क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन में एक तो u गिवन होगा या तो v गिवन होगा। अभी की जो मेथड थी ना, उसमें आप क्या करते हो, आप पहले मतलब इफ u इज गिवन आप v कैलकुलेट करते हो, इफ u इज गिवन आप v कैलकुलेट करते हो, फिर आपको f ऑफ z मिलता है बाय मिलनेस थॉमसन मेथड। ओके, अगर v गिवन है तो आप u कैलकुलेट करते हो और फिर आपको f ऑफ z मिलता है बाय मिलनेस थॉमसन मेथड। यही था ना हमारा अप्रोच, जो गिवन है अपोजिट या कॉन्जुगेट कैलकुलेट करो, देन यू विल गेट दैट f ऑफ z। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ओके, आई विल स्किप दिस स्टेप। ये जो मिडल की जो स्टेप है ना, ये मैं स्किप करता हूँ और डायरेक्टली मैं एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करने वाला हूँ। दैट इज योर सेकंड मेथड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो मिडल की जो स्टेप थी ना आपकी, u गिवन है तो v कैलकुलेट करना है, v गिवन है तो u कैलकुलेट करना है, विदाउट कैलकुलेटिंग दैट हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मैं डायरेक्टली आपको एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करने का पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दिस इज योर सेकंड मेथड। सो दिस इज द फास्ट अप्रोच। अगर आपको डायरेक्ट मतलब अगर क्वेश्चन में बस उन्होंने इतना ही बोला कि एफ ऑफ जेड ही कैलकुलेट करो, तब आपको ये मिडल कैलकुलेट करना है नहीं करना है आपकी चॉइस है। इफ यू अगर आप कैलकुलेट करते हो फिर एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करते हो तो भी करेक्ट है, नहीं करते हो डायरेक्ट एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करते हो तो भी करेक्ट है। ठीक है, सो इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अभी कैसे करना है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ये सिंपल है। ओके, इस प्रोसेस के लिए आपको बस एफ डैश ऑफ जेड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, पोलर में इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है, तो इसमें आपको बस एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एफ डैश ऑफ जेड। एफ डैश ऑफ जेड का कार्टेशियन का फॉर्मूला क्या है, यू एक्स प्लस आई टाइम्स वी एक्स। एफ डैश ऑफ जेड का पोलर का फॉर्मूला क्या है, यू आर प्लस आई टाइम्स वी आर मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू माइनस आई थीटा। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर से भी देख लेते हो या डेफिनेशन याद करते हो तो भी इनफ है। मोर फोकस इज ऑन कार्टेशियन। ठीक है, तो आप यूजिंग दिस एंड यूजिंग CR इक्वेशन यू विल गेट एफ डैश ऑफ जेड। तो पहले आपको यहाँ पे एफ डैश ऑफ जेड कैलकुलेट करना है, इतना ही मैंने एक्सप्लेन किया है। एफ डैश ऑफ जेड मिलने के बाद ओके, आपको एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जेड भी कैलकुलेट करनी है यूजिंग मिलनेस थॉमसन मेथड। तो सिंपली मैंने क्या किया है, एफ डैश ऑफ जेड में कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद अगर आप एफ डैश ऑफ जेड को इंटीग्रेट करते हो आपको एफ ऑफ जेड मिलेगा। इतनी ट्रिवियल प्रोसेस है। देन जस्ट टेक द इंटीग्रेशन, यू विल गेट द एफ ऑफ जेड। ओके, दो ही स्टेप में आप ये मेथड याद रखो, फाइंड एफ डैश ऑफ जेड, टेक द इंटीग्रेशन, यू विल गेट एफ ऑफ जेड। ओके, सो लेट मी टेक वन एग्जांपल ऑन दिस। मैं खुद आपको ये सॉल्व करके देता हूँ। v इज इक्वल टू, और यार बहुत ऊपर गया है, जस्ट 1 मिनट, ये मैं ऊपर लेता हूँ, क्वेश्चन ही ऊपर लेता हूँ। एंड प्लीज़ फोकस हियर, क्योंकि एक ही एग्जांपल लेने वाला हूँ, समझ में आना चाहिए।
Okay, now this is the question. If v is equal to this, find the analytic function f of z in terms of z. अब इस क्वेश्चन में आप मुझे पहले ये बोलो, उन्होंने कहीं पे क्वेश्चन में बोला है कि आपको u कैलकुलेट ही करना है? ऐसा कहीं पे उन्होंने दिया है क्या कि u आपको कंपलसरी कैलकुलेट करना है? इज इट देयर इन द क्वेश्चन? यस और नो? नहीं, बट कुछ क्वेश्चन में ये मेंशन होता है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, उन्होंने क्या बोला है? u गिवन है, उन्होंने क्या बोला है? फाइंड v. सो कैन यू अप्लाई दिस मेथड फॉर दिस क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन में वो अप्लाई कर सकते हो क्या आप? इस क्वेश्चन में आप देखो अच्छे से, हियर वी हैव गिवन u और उनका क्वेश्चन क्या है? फाइंड v such that f of z is analytic and also find f of z in terms of z. So can we apply this method जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, वो इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं है. No. नो, क्योंकि मतलब इस मेथड में आप विदाउट फाइंडिंग भी आप डायरेक्टली यहाँ पे जाने वाले हो एफ ऑफ जेड पे. ओके, तो इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको मेथड डिसाइड करनी है. या नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द मेथड. मेथड ट्रिवियल है. ओके, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है. सो इन केस ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, व्हाट इज योर डैश ऑफ जेड? बोलो, आपको पता है इन जनरल एफ ऑफ जेड क्या होता है? u प्लस आई वी, ये इन जनरल होता है. और ये कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन में एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू क्या है? बोलो, अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, यू एक्स प्लस आई टाइम्स वी एक्स. ये फॉर्मूला ही है ना. पोलर में यू आर प्लस आई टाइम्स वी आर मल्टीप्लाई बाई रेज टू माइनस आई थीटा. अभी आप मुझे ये बोलो, आपके पास v गिवन है, इसलिए आपको एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू भी कौन से वेरिएबल में चाहिए? आई वांट इन टर्म्स ऑफ v ओनली. If v is given, I want f dash of z value in terms of v. If u is given, I want the value of f dash of z in terms of u, है ना. तो अभी मुझे क्या करना होगा? ये मुझे f dash of z की वैल्यू मुझे v में चाहिए, इसलिए मुझे CR इक्वेशन का यूज करना है. सो बाय CR इक्वेशन what we have, ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. तो अगर if I use this equation, I can write this f dash of z in terms of v only. बोलो क्या लिखना होगा? I don't want u here because u नहीं है ना आपके पास v है, तो ux की वैल्यू मुझे किससे रिप्लेस करनी होगी? vy से प्लस I times vx. Now you can see, now I have the value of f dash of z, okay, in terms of v only. यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? Is this clear? Yes, sir. हाँ, अभी आप मुझे बोलो, अगर मैं इसके जगह पे u लिखता हूँ, so you tell me what is the change? क्या चेंज होगा f dash of z में? अगर मैं यहाँ पे u लिखता हूँ तो f dash of z में क्या चेंज होगा? u लिखता हूँ तो आई डोंट वांट v, तो vx की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, माइनस ऑफ यू वाई. vx की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ यू वाई. मतलब ये माइनस टाइम्स होगा डायरेक्टली, माइनस टाइम्स यू वाई. यही दो पॉसिबिलिटी है, इसके बाहर नहीं जाने वाला. एक तो ये होगा, u गिवन है तो ये चेंज होगा, v गिवन है तो ये चेंज होगा. ठीक है, तो ये दोनों केसेस में एक ही एग्जांपल में कवर कर रहा हूँ. ओके, नाउ आई थिंक आपको समझ में आ रहा है. ये डिफिकल्ट नहीं है मेथड, इसके आगे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ सिंस v इज गिवन, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ vy एंड vx. तो बोलो मुझे, बोलो f डैश ऑफ z इज इक्वल टू vy की वैल्यू बोलो, बोलो जल्दी जल्दी. vy, v को विद रिस्पेक्ट टू y क्या मिलेगा? हाँ, X square minus 3y square. 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस i टाइम्स vx 6xy ना. करेक्ट है? करेक्ट और नॉट? विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y कांस्टेंट है, सो ओनली 6xy. ओके, सो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ z. ठीक है, बट ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y आ रही है, मुझे f डैश ऑफ z की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ z. टू फाइंड, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ. टू फाइंड f डैश ऑफ z इन टर्म्स ऑफ z, सो बाय मिलनेज थॉमसन मेथड क्या पुट करना होगा मुझे? बोलो, पुट x इज इक्वल टू z एंड y इज इक्वल टू 0. सो दैट इम्प्लाइज f डैश ऑफ z इक्वल टू क्या मिलेगा?
3z² ये 0 होगा प्लस x y 0 है तो इतना ही आएगा ना, करेक्ट है ये? इज इट करेक्ट? आई विल गेट ओनली 3z², करेक्ट और नॉट? Yes, sir. ओके, सो ये हो गया आपका f डैश ऑफ z। अभी मुझे चाहिए f ऑफ z। सो व्हाट इज माय f ऑफ z? व्हाट इज माय f ऑफ z? इसको इंटीग्रेट करो और प्लस क्या करना होगा? प्लस क्या ऐड करना होगा? प्लस क्या ऐड करना होगा? c, क्योंकि यहाँ पे भी ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल का है। ये याद रखो, यहाँ पे f ऑफ x f ऑफ y तभी आता है जब ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो आपको यहाँ पे f ऑफ y ऐड करना है। अगर यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ पे आपको f ऑफ x ऐड करना है। अभी ये f ऑफ z का फंक्शन है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन, इसलिए c ऐड करना होगा एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज बिकम z³ प्लस c। सर हाँ बोल। f डैश z वाला इक्वेशन नहीं समझ में आया। हाँ, ये कैसे किया है? आपको एक रिजल्ट मैंने आपको दिया ना, व्हाट इज द रोल ऑफ मिलनेस थॉमसन मेथड। मिलनेस थॉमसन मेथड से x एंड y का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ z आप लिख सकते हो। सिमिलरली r एंड थीटा का इक्वेशन अगर आपके पास है तो आप उसको भी z में लिख सकते हो। दैट इज द रोल ऑफ मिलनेस थॉमसन मेथड। एंड वो मेथड क्या है? अगर x एंड y का इक्वेशन है तो x इक्वल टू z रखना पड़ता है एंड y इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है। दिस इज द रूल, ठीक है? एंड ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, उसका प्रूफ भी दिया था। अगर r एंड थीटा का इक्वेशन है तो r इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0, तो मैंने वही किया है। मेरे पास Yes, sir. z की वैल्यू है बट मुझे वो इन टर्म्स ऑफ z चाहिए थी, तो इसलिए मैंने x इक्वल टू z पुट किया, y इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये टर्म 0 होगा, ये भी टर्म 0 होगा। x इक्वल टू 0 मतलब 3z²। इज इट करेक्ट नाउ? सॉरी, आर यू गेटिंग दिस नाउ? यस सर। ठीक है, सो दिस आर द टू मेथड्स फॉर द हार्मोनिक कॉन्जुगेट और फाइंड दी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या कंबाइन हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस दो मेथड से आपको क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। एक होगा फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मीनिंग वही है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इस क्वेश्चन है तो कौन से मेथड से जाना होगा? हमारी पहली मेथड, फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट इसमें आपको फाइंड एनालिटिक फंक्शन यूजिंग हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो इसमें भी कौन से मेथड से जाना होगा? मेथड 1 से, क्योंकि u गिवन तो v कैलकुलेट करके आपको वो फंक्शन चाहिए था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैलकुलेट करके जाना है, ठीक है? एंड थर्ड जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, फाइंड ओनली एनालिटिक फंक्शन। अगर इतना ही देते तो आप चाहो तो मेथड 2 का यूज कर सकते हो, या अगर आपको नहीं करना है मेथड 2 का यूज तो नहीं भी करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने अभी कवर किए। हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे कैलकुलेट करते, नेक्स्ट उसके आगे एनालिटिक फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते, ओके, यूजिंग ये करने के लिए मिलनेस थॉमसन मेथड का आप यूज़ करते हो, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। और अगर आपको विदाउट हार्मोनिक कॉन्जुगेट डायरेक्ट अगर आपको एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करना है? मेथड 2 से। इज दिस क्लियर नाउ? एनी डाउट इन दिस पार्ट? एंड वो पीडीएफ जो मैंने शेयर किया आप उसके क्वेश्चन ट्राई करो। देयर आर सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो, जिससे डेरिवेटिव आपका क्लियर होता जाएगा और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? बोलो यस और नो, या नहीं भी समझ में आ रहा अभी बोल दो। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, बोलो जल्दी बोलो, क्लियर और नॉट? यस सर। Other students, I'm getting reply from only 2-3 students. There are 59 students. तो कितने लाउडली मुझे यस आना चाहिए? Yes, sir. आपको समझ में आ Yes, रहा है? sir. टॉपिक नहीं आ रहा तो आप ना बोल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं नेक्स्ट लेक्चर भी उस पर ही देता हूँ। जब तक नहीं समझ में आता तब तक आगे जाने में कोई लॉजिक नहीं है। ओके, एंड टॉपिक में आपको मैंने बस क्या बोला, इसमें थोड़ा बहुत आपको केयरफुल लेना है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेते समय, बाकी कुछ नहीं है इसमें, है ना? कभी एक ही क्वेश्चन में डेरिवेटिव भी आता है, इंटीग्रेशन भी आता है, वो थोड़ा स्विच आपको बस याद रखना है। और अभी अगर आपको मेथड क्लियर हो रही है ना, डोंट वरी अबाउट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, वो आप बाद में भी वर्कआउट कर सकते हो। ओके, आपको बस ये प्रॉब्लम है कि यार मुझे 1/x² + y² का डेरिवेटिव समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उस पर आप वर्कआउट कर सकते हो, बट मेथड ही क्लियर नहीं है तो उस पर आप कभी वर्कआउट नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो फिर से मैं पूछ रहा हूँ, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, वेदर दिस 2 मेथड्स आर क्लियर? टेल मी। Yes, sir. ओके, Yes, sir.
Yes, sir. Sure. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो नाउ अभी मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद आपको ये समझ में आ रहा है एंड स्टिल अगर आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो लास्ट वीडियो आप देखो जिसमें ये मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। एंड ये जो लास्ट अभी मेथड जो 2 थी ना वो भी मैंने एंड में कहीं पे इंट्रोड्यूस की थी। ओके, सो दिस इज जस्ट द रिविजन यू कैन से ऑफ आवर लास्ट लेक्चर। ओके, आज के जो लेक्चर का जो मेजर टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ओके, सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इससे भी ट्रिवियल है, जो अभी हमने लिया उससे भी ट्रिवियल है। ये इस पीडीएफ में मैंने डायरेक्टली बुक के एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप वो रेफर कर सकते हो। एंड ऐसे आपको एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। डिटरमाइन के सच दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यहाँ तक आपको 1 से 2 इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके आपको समझ में आ जाएगा के मस्ट बी 1। ये दोनों तभी इक्वल आएंगे जब आपका के 1 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू में या थियरी में भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। डिटरमाइन के सच दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक। सेम पोलर में भी हो सकता है वैसे, एनालिटिक के कैलकुलेट करो। तो इन दोनों को इक्वल अगर सेट करना है तो के की वैल्यू कंपलसरी 3 लेनी होगी, आप चेक करो। इफ के इज 3 देन ओनली दिस सीआर इक्वेशंस आर इक्वल। ऐसे ट्रिवियल क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। जो नहीं लिया है वो आप नहीं भी रेफर करते हो तो भी चलेगा। जितने क्वेश्चन मैंने लिए उतना ही आप रेफर करो। ओके, एंड नाउ लेट मी फोकस टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ओके, सो इसमें इनिशियली how you consider a line integral, है ना। so that is defined. See this is the curve, the initial point is say z0 मतलब उसके पीछे कुछ तो x0, y0 आपका पॉइंट होगा, zn मतलब xn, yn पॉइंट होगा, and this is your curve, है ना। so what is the line integral over this curve C? This is my curve C. so what is the line integral over this curve C? ठीक है, for some function f of z. so it is denoted by इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड टी जेड ओवर कर्व सी, ठीक है। सो इसको बेसिकली रीड कैसे करना है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस और हाउ यू रीड दिस? दिस इज एक्चुअली द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड ओवर अ कर्व सी, z0 टू z1 मतलब z1 पॉइंट से zn। ओके, सो दिस इज द लाइन इंटीग्रल ओवर दिस कर्व, ठीक है। ये उसके बस एंड पॉइंट्स है, या आप ये नोटेशन याद रखो क्योंकि इस पे हम ज़्यादातर जाने वाले हैं। लाइन इंटीग्रल ओवर अ कर्व सी, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो लेता हूँ मैं, बाकी चीज़ें इतनी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, या सो दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम। ओके, अभी आप अच्छे से फोकस करो। क्वेश्चन हर एक स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए, जितना भी है उतना सारा हमने कवर किया है ऑलरेडी। ओके, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या है? एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? इट सैटिस्फाइज सीआर इक्वेशन एंड ऑल। तो आपको वो डायरेक्टली गिवन है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जो भी गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है, मतलब वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? एंड एफ डैश ऑफ जेड इज कंटिन्यूस। वो भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, एफ डैश ऑफ जेड इज कंटिन्यूस, ये सारे क्वेश्चन में होगा, ठीक है। एट ईच पॉइंट विद इन एंड एफ डैश ऑफ जेड मतलब उसका डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस है एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व मतलब ओपन नहीं है, ये कर्व ओपन कर्व है। इफ दिस इज माई ए पॉइंट, दिस इज माई बी पॉइंट, नाउ दिस कर्व इज नॉट अ क्लोज कर्व, दिस इज ओपन कर्व। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ इट बिकम अ क्लोज, मतलब एज इट इज, जैसा वर्ड है वैसे आपको ट्रीट करना है। सो एफ डैश ऑफ जेड इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट विद इन, मतलब इसके अंदर है ना, एट ईच पॉइंट विद इन, जस्ट 1 मिनट, एट ईच पॉइंट विद इन दिस कर्व एंड ऑन बाउंड्री ऑल्सो, एंड ऑन अ क्लोज कर्व मतलब इसके बाउंड्री पे भी। रिजल्ट फिर से सुनो, एफ ऑफ जेड आपका एनालिटिक है, ठीक है।
f dash of z is continuous at each point within an all simple closed curve C, then the integral is 0. Then the integral over this closed curve is 0. ओके, इसका सिंपल मीनिंग क्या है मैं आपको बोलता हूँ. अगर आपका फंक्शन एनालिटिक आता है, ओके, इफ योर फंक्शन इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री, अगर आपका गिवन फंक्शन वो इस कर्व के ऊपर एंड कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स के लिए अगर आपका फंक्शन एनालिटिक आता है तो आपका इंटीग्रल अबाउट दिस कर्व, ये आपकी ये जो बाउंड्री है कर्व सी है, सो योर इंटीग्रल of that function, okay, the integral of that complex function over this curve C is 0. आपको इतने इमीडिएटली नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ. या वैसे आगे है क्या? ओके, यहीं पे एक एग्जांपल लेता हूँ, कंस्ट्रक्ट करके देता हूँ आपको. चल, अब अच्छे से फोकस करो, आपको समझ में आ जाएगा. मैं यहीं पे क्रिएट करता हूँ. मैं रीजन लेता हूँ, एक कर्व पहले लेता हूँ, क्या है वो, दिस इज़ पॉइंट 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, और मैं 1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ. सो दिस इज़ अ सर्कल हुज रेडियस इज़ 1, है ना, 1 रेडियस का सर्कल है. ओके, क्लियर है ये? एंड एफ ऑफ जेड अगर मैं लेता हूँ ये 1 अपॉन z माइनस 1. सो अभी आप बोलो, ओके, दिस इज माई कर्व, या दिस इज, ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री को मैं कर्व बोल रहा हूँ, तो मैं अलग कलर से डिनोट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा. ब्लू कलर इज माई बाउंड्री, दिस इज माई कर्व सी. नाउ कैन आई राइट इंटीग्रल ऑफ दिस एफ ऑफ जेड ओवर अ क्लोज. ये जो नोटेशन, इसका मतलब क्या है, ये जो कर्व है ना सी, ये क्लोज है. इसका मतलब क्या है, जो कर्व सी है वो क्लोज है. तो ओवर अ क्लोज कर्व सी इज इक्वल टू 0. कैन आई राइट दिस यूजिंग कॉचीज थ्योरम? कैन आई राइट दिस? इफ नॉट देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोलो, आपको ही समझ में आएगा. इज दिस करेक्ट? ये करेक्ट लिखा है क्या मैंने? ये करेक्ट आने के लिए अगर मैं ये लिखता हूं इफ दिस इज 0, उसका मतलब क्या होता है, आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ये जो आपका फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, दिस फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक, दिस फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक inside and on the this function must be analytic at all the points inside this curve and on the boundary. Okay, in that case your integral is 0. अगर ये फंक्शन आपका इस कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स के लिए एंड ऑल्सो ऑन द बाउंड्री, ओके, बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के लिए अगर एनालिटिक आता है तो ही आप इसका इंटीग्रल 0 लिख सकते हो. ओके, तो अभी आप देखो, दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट विच पॉइंट, कौन से पॉइंट के लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे, एट विच पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, कौन से पॉइंट के लिए प्रॉब्लम है. दिस इज द रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था ना, रैशनल फंक्शन इज एनालिटिक व्हेन योर डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो. तो कौन से पॉइंट के लिए प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे, बोलो. z equals to 1. z इक्वल टू 1 पे आपका ये फंक्शन एनालिटिक होगा नहीं, क्योंकि वो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. z इक्वल टू 1 पे दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. यानी ये पॉइंट आपका सर्कल के अंदर आ रहा है, ये पॉइंट आपका सर्कल के अंदर आ रहा है. इट मींस योर एफ ऑफ z इज नॉट एनालिटिक इनसाइड दिस कर्व. दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इनसाइड दिस कर्व, हेंस इट इज नॉट सैटिस्फाइज द कॉचीज थ्योरम, सो इट इज नॉन जीरो. तो ये पॉसिबल होगा नहीं. बट अगर मैं इसके जगह पे ये लेता हूँ 4, सो कैन इट बिकम एनालिटिक नाउ? अभी एनालिटिक होगा क्या? नाउ दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 4. z इक्वल टू 4 पे प्रॉब्लम है, बट z इक्वल टू 4 पॉइंट कहाँ पे आपका, यहाँ पे, करेक्ट. z इक्वल टू 4 पॉइंट यहाँ पे है ना, यस और नो? 4 प्लस 0 आए, ये पॉइंट यहीं पे आएगा ना. अरे बोलो यस और नो. Yes sir. z इक्वल टू 4 पॉइंट, z इक्वल टू 4 पॉइंट आपका इस सर्कल के बाहर है. और आपको मैंने पहले ही क्लियर किया है, आपको एनालिटिक चाहिए उस कर्व के अंदर, उस कर्व के बाहर जो भी पॉइंट आता है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो इस आप देखो z इक्वल टू 4 पे प्रॉब्लम है एंड वो 4 पॉइंट आपका इस कर्व के बाहर है. इट मीन्स योर एफ ऑफ z इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड दिस कर्व. करेक्ट है?
It means your f of z is analytic at all points inside this curve. करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. क्योंकि सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन किसी भी पॉइंट के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 पुट करो नॉन जीरो आ रहा है, 2 पुट करो नॉन जीरो आ रहा है, 0 पुट करो नॉन जीरो आ रहा है. तो सर्कल के अंदर जितने पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट मीन्स बाय कॉचीज थ्योरम दिस इंटीग्रल इज जीरो. दिस इज योर कॉचीज थ्योरम. कॉचीज थ्योरम से आपको बस क्या समझ में आता है? इफ योर गिवन फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कर्व देन योर इंटीग्रल इज जीरो. इफ नॉट फिर वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आगे उसके लिए रिजल्ट है. पहला थ्योरम समझ में आ रहा है? पहला थ्योरम समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप बोलो और फिर हम आगे जाते हैं. मैं ऐसे ट्रिवियल एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि वही एग्जांपल है आपको एग्जाम में भी. मैं आपको फंक्शन देता हूँ, आप मुझे बोलो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी. 2 फंक्शन देता हूँ, दोनों केस में आप बोलो. मैं आपको पहले रीजन देता हूँ. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2. अभी मैं रीजन आपको दे रहा हूँ सर्कल ऑफ रेडियस 2. सो मैं आपको 2 फंक्शन दे रहा हूँ. पहला फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू, दिस इज माई कर्व सी. दिस इज माई कर्व सी, बाउंड्री कर्व सी. पहला फंक्शन मैं आपको दे रहा हूँ z अपॉन z -1. एंड सेकंड फंक्शन मैं आपको दे रहा हूँ 1 अपॉन z -3 z -4. तो आप मुझे बस ये बोल दो व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस एंड व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस ओवर दिस कर्व सी. बोलो, जिस केस में पता है उस केस में बोलो. पहला देखो फर्स्ट f ऑफ z इक्वल टू z अपॉन z -1. दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट विच पॉइंट. कौन से पॉइंट के लिए प्रॉब्लम है? आपको बस क्या देखना है, जिस पॉइंट के लिए प्रॉब्लम है ना वो पॉइंट अगर आपका सर्कल के अंदर आ रहा तो कॉची थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा. तो ओके, अगर सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है देन यू कैन डायरेक्टली राइट दैट वैल्यू एज 0. ओके, आपको बस ये देखना है कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स के लिए वो एनालिटिक आना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए वो. बोलो. हाँ, z इक्वल टू 1, ये कौन, सॉरी z इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम है ना, क्योंकि z इक्वल टू 1 पे आपका डिनोमिनेटर 0 होगा. सो z इक्वल टू 1 सर्कल के अंदर है, सो इट क्रिएट अ प्रॉब्लम. ठीक है, सो वी डोंट नो दिस इंटीग्रल. कॉची थ्योरम के लिए क्या चाहिए? कॉची थ्योरम क्या होता है कि अगर वो सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के लिए अगर वो एनालिटिक होता है तो ही कॉची थ्योरम से आपको क्या समझ में आता है, दैट इंटीग्रल इज 0. इफ नॉट देन वी डोंट नो, उसके लिए आगे रिजल्ट है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट सेकंड. सेकंड में कौन से पॉइंट के लिए प्रॉब्लम है? कौन से पॉइंट्स के लिए प्रॉब्लम है? 3 and 4. 3 and 4. 3 and 4 सर्कल के अंदर है क्या? No. नो. इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक होगा सारे पॉइंट्स के लिए इनसाइड दिस सर्कल. करेक्ट. हेंस इट इंप्लाइज दिस f of z इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड दिस कर्व C एंड देयरफॉर बाय कॉची थ्योरम योर आंसर इज 0. अभी क्लियर हो रहा है? कॉची थ्योरम क्या है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. इफ योर गिवन फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कर्व C देन योर इंटीग्रल इज 0. इफ नॉट वी डोंट नो. क्लियर हो गया ये पॉइंट? करेक्ट है. अभी इस केस में अगर मैं यहाँ पे इतना ही लिखता हूँ z² + 1, क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर बोलो. z² + 1 ही लिखता हूँ, क्या आएगा फर्स्ट का आंसर? हाँ, z² + 1 अगर 0 ही आएगा ना, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर 1 है. अभी डिनोमिनेटर 1 है तो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है ही नहीं ना. प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है ही नहीं, तो ये सारे पॉइंट के लिए एनालिटिक होगा. सारे पॉइंट्स के लिए एनालिटिक है तो इंटीग्रल इज 0. ओके, वैसे आगे एग्जांपल लेने वाले हैं और इन डिटेल में. क्लियर होगी डेफिनेशन? फर्स्ट थ्योरम इज क्लियर. नेक्स्ट. So, हाँ बोलो. so what do we exactly mean by integration of f of z t equals to 0? f of z, That definition which Cauchy's theorem gives us. ये स्टेटमेंट बोल रहे हो क्या आप? No, sir, the equation. Sorry, your voice is breaking. Can you repeat again?
फिर से बोलो। So the equation which is written after the statement of Cauchy's theorem. What is this? Sorry, your voice is not clear. So is it clear now? Is it? So is my voice clear now? हाँ, yes, हाँ. So I'm talking about the equation which is written after the statement of Cauchy's theorem. What does it exactly mean? ये स्टेटमेंट करोलरी या ये स्टेटमेंट? No, sir. The expression, the equation above that statement. अबो दिस स्टेटमेंट, ये. So please scroll down. ओके. Yes, हाँ, आप रीड करो डायरेक्टली जो आपको. so the expression which is integration over closed curve f of z dz equals to 0. What does it exactly means? Okay. See, now you can't compare this integral with your real integral. This is the complex integral. ठीक है, ज्योमेट्रिकली भी इसका मीनिंग है. ओके, सी एट द एंड इंटीग्रल इज एरिया, बट आपको इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को पहले रियल में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा एरिया जीरो आ रहा है. ठीक है, एट द इंटीग्रल का मीनिंग चेंज होगा नहीं, बट यू कांट डायरेक्टली कंपेयर दिस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू रियल इंटीग्रल. ये आपको तभी ज्योमेट्रिकली समझ में आएगा जब आप इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को रियल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, और उसके लिए भी आगे प्रोसेस है. मे बी दैट पार्ट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस. आप x इक्वल टू वाई इक्वल टू वैल्यू पुट करते हो, फिर आपको वो रियल इंटीग्रल देता है. ठीक है, सो राइट नाउ सिंस इंटीग्रल इज सिंपली मीन्स द एरिया अंडर द कर्व, जैसे आपको अभी तक बोला है वही है. ओके, बट कॉम्प्लेक्स को अगर आप डायरेक्टली ट्रीट करते हो कि कॉम्प्लेक्स आप प्लॉट नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस यू कन्वर्ट दिस इनटू अ रियल पार्ट, रियल केस. ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स की जो इंटीग्रल आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा ना कि फंक्शन में चेंज करता हो तो इंटीग्रल चेंज हो रहा है, मतलब ये रियल जैसा नहीं है, रियल जैसा नहीं है ये. ठीक है, तो इसको अगर आपको एक्चुअली ज्योमेट्रिकली देखना है तो आपको इसको रियल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, सो दैट पार्ट इज देयर. मे बी एट द एंड ऑफ दिस होल टॉपिक मैं आपको बस हिंट देता हूँ कि कैसे ये पूरा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल रियल में कन्वर्ट होता है. वो प्रोसेस x इक्वल टू वाई इक्वल टू वैल्यू पुट करके करनी पड़ती है आपको, फिर वो बड़ा कैलकुलेशन है, उसके बाद आपको उसके पीछे का रियल इंटीग्रल समझ में आता है. ठीक है, ये भी जो एरिया ये कॉम्प्लेक्स एरिया है, इसको आपको रियल में देखना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज एक्चुअली द क्वेश्चन, मतलब क्या आप कैलकुलेट कर रहे हो. ठीक है, तो अभी के लिए इसको आप कॉम्प्लेक्स में ट्रीट करो. ओके, यू कांट डायरेक्टली मतलब यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्विंग दिस यू कांट से दैट कि ये कौन सा एरिया है, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. यहाँ से देखना कि यहाँ से एक्सप्लेन करना कि ये कौन सा एरिया मैं आपको कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है. जब तक वो रियल में कन्वर्ट नहीं होता, रियल इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे. देयरफॉर मैंने आपको ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिया था, दिस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर रियल इंटीग्रल. डायरेक्टली उससे मैच करने की कोशिश मत करो. ये जब तक वो रियल में कन्वर्ट नहीं होता तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा. ओके, सो इट इज टोटली अ डिफरेंट पार्ट. ओके, व्हेन वी आर इन कॉम्प्लेक्स थिंग, ओके, दैट अप्रोच इज डिफरेंट दैन योर रियल अप्रोच. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग चाहिए तो तब उस केस में आपको इसको रियल इंटीग्रल में ही कन्वर्ट करना होगा. उसके बाद ही मैं आपको बोल सकता हूँ कि यार ये एरिया, ये ग्राफ ड्रॉ करो, उसके पीछे जितना भी एरिया है, कर्व का जो फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट देखो, उस अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि इतना एरिया मुझे कैलकुलेट करना है. ठीक है, वैसा ही मीनिंग है. बट डायरेक्टली फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल यू कांट मतलब यू कांट विजुअलाइज दैट एरिया और दैट इंटीग्रल. ओके, सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन. क्लियर, समझ में आ रहा है? Yes, sir. So this is the complex integral which is totally different from your real integral. If you want to visualize, you have to convert complex integral into real integral. This is the answer. Okay, and that part is also there. Maybe not in your syllabus, but मैं आपको एक हिंट देता हूँ एंड में कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है, एंड फिर उसके बाद आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो. ओके, बट इतना भी अगर आपको पता है तो इनफ है. एंड दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड एज कंटूर इंटीग्रल. दिस इज जस्ट द डेफिनेशन. शायद मैंने एक एग्जांपल या सी, ये एरिया नहीं है, ये अभी मैंने जो ड्रॉ किया है ये आपका एरिया नहीं है. आप इस कर्व के ऊपर इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो. दिस थिंग्स आर डिफरेंट. आपको मल्टीपल इंटीग्रल टॉपिक तो याद होगा. मल्टीपल इंटीग्रल में आप वो जो लिमिट्स कैलकुलेट करते हो ना, मल्टीपल इंटीग्रल में वर्टिकल स्ट्रिप लेके, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके आप वो जो लिमिट्स कैलकुलेट करते हो ना, वही पार्ट में यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. बट यहाँ पे मैं कर्व ले रहा हूँ, डायरेक्टली कर्व ले रहा हूँ.
ओके आप वहाँ पे एक्स एंड वाई के लिमिट्स लेके फिर वो आप आगे सॉल्व करते हो। ओके ना नेक्स्ट क्या है, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक देन इंटीग्रल और एफ ऑफ जेड z1 to z2 is independent of the path joining the points z1 and z2. Okay, so these are just a remarks. Okay, if you consider a path c1 from z1 to z2 and path c2 from z1 to z2, then line integral in both case are constant provided that function is analytic. तो ये सबसे strong condition है। ये सब कुछ इजी होता है व्हेन योर फंक्शन इज एनालिटिक, व्हेन योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक देन दैट विल डिफर, मतलब वो कुछ भी आ सकता है उस केस में। इफ योर फंक्शन इज एनालिटिक तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेनिफिट ऑफ दिस एनालिटिक फंक्शन। पाथ पे डिपेंड नहीं है, किस भी पाथ से आप इंटीग्रल सॉल्व करो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है ना, तो मेरा जो पहला रिजल्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉचीज थ्योरम, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। कॉचीज थ्योरम एंड नाउ नेक्स्ट थ्योरम जो आपको, टोटल देयर आर 3 थ्योरम्स एंड दैट इज द ऑल अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। 2 थ्योरम है यहाँ पे। एक हो गया कॉचीज थ्योरम। कॉचीज थ्योरम क्या था, आपका फंक्शन उस कर्व के अंदर सारे पॉइंट्स पे अगर एनालिटिक आता है तो इंटीग्रल 0 होता है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इफ नॉट तो आपके पास ये एक रिजल्ट है, इफ नॉट और एक और रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट। सो टोटल ऐसे 3 थ्योरम है। First theorem, Cauchy's theorem. What is Cauchy's theorem? If your function is analytic at all the points inside the curve, then your integral is 0. Second, if not, and third भी if not. अगर तो इसके आगे क्या होगा, आपका जो फंक्शन है वो जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं आ रहा है वो पॉइंट आपका कर्व के अंदर आने वाला है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक ये जो प्रीवियस थ्योरम था इस पे मैंने आपको क्या बोला है कि जो आपका फंक्शन है दैट फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कर्व। इन सारे पॉइंट्स के लिए वो एनालिटिक आ रहा था, इसलिए इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ रही थी। ओके, अभी मैं ऐसे एग्जांपल लेने वाला हूँ जिसमें कर्व के अंदर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं आने वाला, तो उस पे केसेस है। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट दिस कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला में सबसे मतलब आपको ओरली क्या याद रखना है, इस थ्योरम में क्या होता है, देयर इज ओनली वन पॉइंट इनसाइड द कर्व वेयर योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। फिर से रिपीट करो, कर्व के अंदर सारे पॉइंट्स के लिए एनालिटिक आता है, आंसर 0 आता है, वो पार्ट अभी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, अगर कर्व के अंदर बस एक ही पॉइंट है, देयर इज ओनली वन पॉइंट, एक ही ऐसा पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट वेयर योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं आ रहा है। ओके, उस केस में आपको यूज करना है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। इफ देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट इनसाइड द कर्व वेयर योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, देन यू हैव टू यूज कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, okay, if more than one points are there inside the curve where your function is not analytic, then we have to go for a third theorem, that is called as residue theorem. That is the last topic. थ्योरम क्या वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ मैं, इतना तो समझ में आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो, 1 2 3 रेडियस का मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप एज्यूम करो 3 रेडियस का सर्कल एज्यूम कर रहा हूँ। हाँ, आप मुझे बस बोलो कि कौन सा फंक्शन कौन से थ्योरम में जाएगा। इफ आई टेक दिस, if I take this z-1 z-5 and third if I take this z-1 z-2, बोलो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। f of z equal to 1/z-4, whether it is analytic for all the points inside the curve, whether it is analytic for all the points inside the curve, yes, क्योंकि z equal to के लिए प्रॉब्लम है, वो बाहर आ रहा है, इसलिए ये थ्योरम 1 से होगा, इसका इंटीग्रल क्या आने वाला है 0। डन, क्लियर। कम टू नेक्स्ट। हाँ, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिस पे ये एनालिटिक नहीं आ रहा है? 1 and 5, उसमें से कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर है? It means what? There exists only one point.
देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट इनसाइड द कर्व वेयर योर गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। करेक्ट है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला जाएगा, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, यहाँ पे ओनली कॉची फॉर्मूला। करेक्ट, एक ही ऐसा पॉइंट है जिसपे एनालिटिक नहीं आ रहा है, सर्कल के अंदर है वो, तो यहाँ पे कॉची इंटीग्रल का यूज करना है। थर्ड में क्या है, कौन से पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, 1 और 2 पे, दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो एक से ज़्यादा पॉइंट्स आपके सर्कल के अंदर आ रहे हैं जहाँ पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, या इसलिए यहाँ पे रेसिड्यू थ्योरम आएगा। अभी क्या कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है, दैट आई नीड टू एक्सप्लेन ओनली। इज इट क्लियर नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट दिस थ्री थ्योरम, क्लियर और नॉट? Yes, sir. एक पॉइंट Yes, आ sir. रहा है कॉची इंटीग्रल, एक से ज़्यादा आ रहा है रेसिड्यू, कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है कॉची फॉर्मूला। एंड डायरेक्ट उस केस में, इसमें तो सबसे ट्रिवियल होता है, डायरेक्टली इंटीग्रली जीरो आता है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, इन दोनों केसेस में सॉल्व करना है, सो देयरफॉर इट टेक्स टाइम। ओके, नाउ वी आर रेडी टू डिफाइन दिस थ्योरम। मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, ओके, एक्चुअल मैथमेटिकल लैंग्वेज इज देयर इन द थ्योरम एंड नाउ। So if f of z is analytic on and within a closed contour C, and if A is the point within a curve C, then this, आपको इससे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मुझे पहले ही पता है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे देखो, आपको बस ये इंटीग्रल देखना है। तो क्वेश्चन क्या है, ये आपकी कर्व सी है, दिस इज योर गिवन कर्व, थ्योरम ऐसा ही है, सॉरी, just 1 minute, let me open this file again. Yes, we are here. So you have to just focus on only this part, जो अभी मैं हाईलाइट करके देने वाला हूँ ना, आपको बस इतना ही याद रखना है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में, फिर स्टेटमेंट भी याद रखने की जरूरत नहीं। तो अब देखो, अभी स्टेटमेंट क्या है, ये आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ, दिस इज योर होल फंक्शन, सम न्यूमरेटर इज देयर, न्यूमरेटर को आप डिनोट कर रहे हो एफ ऑफ जेड से, एंड डिनोमिनेटर आपका क्या है, जेड माइनस दैट पॉइंट, ओके, दिस इज योर गिवन फंक्शन, इसको आप जी ऑफ जेड कंसिडर कर सकते हो, रैशनल फंक्शन है। नाउ दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट विच पॉइंट, कौन से पॉइंट के लिए ये फंक्शन एनालिटिक नहीं आ रहा है, बोलो, at A, एट ए, एंड वो पॉइंट मैंने कर्व के अंदर लिया है, समझ में आ रहा है? तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वही है। तो ऐसे केसेस में इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय ये न्यूमरेटर एट जेड इक्वल टू ए और एफ ऑफ ए, सिंपली 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ ए। थ्योरम क्लियर हो गया? थ्योरम क्लियर हो गया सबको? एग्जांपल लेने वाला, इफ देयर एग्जिस्ट अ वन पॉइंट in which your function inside this circle at which your function is not analytic, then your integral is 2 pi I multiply by f of a, where a is where f is the numerator function, and a is what, where f is the numerator function, and what is a is that point where your function is not analytic, इसलिए आपको डिनोमिनेटर को डिलीट करना है, एंड ये जो रिमेनिंग फंक्शन है उसमें z इक्वल टू ए पुट करना है, इतना सिंपल है। ओके, let me, but before that, before taking some examples, let me first explain कि कॉम्प्लेक्स में डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, वो रीजन कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि वो रीजन कॉम्प्लेक्स में होगा, आपको उसको रियल में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, तभी आप उसको देख सकते हो। सेम फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल आल्सो, जब तक आप उसको रियल में कन्वर्ट नहीं करते हो तब तक आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। ओके, सो इसलिए ये एक थ्योरम आपको या एक रिजल्ट आपको याद ही रखना है। ऐसे रीजन आपको क्वेश्चन में रहेंगे, z minus z naught, modulus of z minus z naught equal to r. Z is the complex number, z naught is also complex number, x naught plus I times y naught, r is the real number, वो रेडियस है ना, तो वो रियल नंबर आएगी। ओके, सो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r, ये जनरली क्या होता है, इट इज़ अ सर्कल, ये कॉम्प्लेक्स में बट रियल में होता है ये सर्कल, विद सेंटर एट z नॉट, रेडियस इज r, तो ड्रॉ करने में आपको ईजी जाएगा ये। In general, modulus of z minus z naught equal to r is a circle centered at z naught, radius is r. For example, अगर z naught में x naught y naught plus I times y naught लेता हूँ, तो मेरा सर्कल
का सेंटर क्या आएगा, x नॉट कॉमा वाई नॉट, दिस इज माई सेंटर, रेडियस इज r, सो इजीली मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. ओके, सो लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1. इसको कैसे ड्रॉ करोगे, इसको आपको कंपेयर करना है मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r से. तो z नॉट की वैल्यू क्या है, z नॉट की वैल्यू क्या है, बोलो. 0. z नॉट की वैल्यू क्या है, 0. r की वैल्यू क्या है, 1. 0 मतलब सेंटर क्या होगा, 0 कॉम्प्लेक्स को आपको कैसे लिख सकते हो, 0 प्लस 0 आए ना, 0 कॉम्प्लेक्स को आप कैसे लिख सकते हो, 0 प्लस 0 आए, तो मतलब क्या है, सेंटर 0 0 एंड रेडियस क्या लेनी है, 1. आर यू गेटिंग दिस, मैंने लिखा है वो देखो प्रॉपर, यहाँ पे समझ में आ रहा है. मॉड z इक्वल टू 1 मीन्स सेंटर 0 0 रेडियस 1. एक और लेता हूँ, मॉड ऑफ z माइनस 2i इक्वल टू दिस. इसको भी कैसे कंपेयर करना है, z माइनस z नॉट इक्वल टू r से. तो z नॉट की वैल्यू क्या है इस केस में, z नॉट की वैल्यू क्या है, 2i. 2i कॉम्प्लेक्स को आप कैसे लिख सकते हो, 0 प्लस 2i एंड r इज 3/2. तो क्या होगा सेंटर, सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा इस केस में, x, y सेंटर होता, तो सेंटर क्या होगा 0,2 ना, करेक्ट है, 0,2 मतलब ये सेंटर होगा. एंड रेडियस क्या लेनी है आपको, 3/2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, रेडियस इज 3/2. और लेता हूँ, और एग्जांपल लेता हूँ, आप बोलो सेंटर और रेडियस मुझे बोलो. मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3 इक्वल टू 1, ये एक बोल दो. मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2i इक्वल टू 2, ये एक बोल दो. मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 3 1, ये एक बोल दो. एंड z प्लस 2i, ये एक बोल दो. एक और देता हूँ, रुको एक मिनट, इतना डिफिकल्ट नहीं आने वाला, फिर भी मैं आपको अंडरस्टैंड के लिए दे रहा हूँ. बोलो, इन सारे केसेस में मुझे बस आपसे चाहिए सेंटर क्या है, रेडियस क्या है. स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, व्हाट इज द सेंटर, इसको कंपेयर करना है z नॉट से. z नॉट क्या है, 3. 3 कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिख सकते हो, 3 प्लस 0r. हाँ, तो व्हाट इज सेंटर, टेल मी फास्ट, व्हाट इज सेंटर, 3,0. रेडियस इज व्हाट, 1. नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटर बोलो, रेडियस बोलो. z नॉट इक्वल टू 0 minus 2. 0 प्लस 2i लिख सकते हो, तो 0,2 सेंटर, रेडियस इज 2. लेट अबाउट दिस थर्ड एग्जांपल, minus 3,0. साइन नहीं यार, तो इसलिए इसको माइनस एडजस्ट करना होगा. तो z नॉट की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, क्योंकि प्लस साइन है. सो -3 को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिख सकते हो, -3 प्लस 0i, सो सेंटर इज -3,0, रेडियस इज 1. गुड. व्हाट अबाउट नेक्स्ट, डायरेक्ट बोला अभी, z नॉट इज -2i, 0, minus. and r is 1. What about this last, माइनस एडजस्ट करके, सेंटर 2, -3. वेरी गुड. 2, माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लेता तो ब्रैकेट में 2 - 3i होगा, है ना. सो 2, -3 इज द सेंटर, रेडियस इज 4. इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, इतने ही सारे कर्व्स हैं. तो ड्रॉ करने का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया. ऐसे ही सारे एग्जांपल्स आने वाले, जितना मैंने लिया वो तो और भी कॉम्प्लिकेटेड लिया, इससे ट्रिवल ही है आपको, ठीक है. नाउ आपको ये तो पता है कि ये कर्व सी जो पार्ट है ना, ये ड्रॉ कैसे करना है. सर्कल ही आते हैं सारे, सो डोंट वरी. और एक और रिजल्ट मैंने वो फिर से दिया है, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि ये मुझे चाहिए एंड में, वो मैंने एक बार और दिया है कि अगर रैशनल फंक्शन आता है ऐसे, सम न्यूमरेटर अपॉन सम डिनोमिनेटर, सो इट इज़ एनालिटिक प्रोवाइडेड योर डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो. इट इज़ नॉट एनालिटिक व्हेन इट इज जीरो, ठीक है. नाउ वी आर रेडी टू टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं. इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल वेयर c इज द सर्कल mod z - 2 इक्वल टू 1 एंड c इज द सर्कल mod z इक्वल टू 1. एक एग्जांपल में लेता हूँ आपका प्रॉपर, फिर आगे क्या आप कर सकते हैं डायरेक्टली. क्वेश्चन क्लियर है, ये आपका फंक्शन है. सो टेल मी व्हाट इज योर फंक्शन, क्या गिवन है आपको फंक्शन, g ऑफ z इक्वल, हमेशा g ऑफ z ही बोलो फंक्शन को. हाँ, व्हाट इज दैट फंक्शन, z² + 1 अपॉन z - 2. ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम अ फर्स्ट कर्व. पहले ड्रॉ करते हैं. सो फर्स्ट कर्व क्या आपकी
मॉडुलस ऑफ z माइनस टू इक्वल टू 1। क्या है ये बेसिकली, बोलो। इट इज अ सर्कल हुज सेंटर्ड इज, बोलो जल्दी, सेंटर क्या है, व्हाट इज सेंटर? 2,0, रेडियस इज 1। ड्रॉ करो, ये प्रॉपर ड्रॉ करना है, प्रॉपर मतलब 2,0 मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ओके। ये 2,0, रेडियस 1, करेक्ट है ये, है ना? दिस इज 1, दिस इज 2, है ना? 2,0, सेंटर, रेडियस इज 1, ओके। नेक्स्ट अभी देखते हैं फंक्शन। नाउ दिस फंक्शन g ऑफ z, पहले ये देखना है कि कौन से पॉइंट के लिए एनालिटिक नहीं आ रहा है। g ऑफ z इज नॉट एनालिटिक एट व्हाट, एट विच पॉइंट इट इज नॉट एनालिटिक, एट विच पॉइंट योर गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, z equals to 2. z इक्वल टू 2, ओके। अभी आपको तीनों में से एक थ्योरम देखना है। पहला थ्योरम आता है सर्कल के अंदर कोई पॉइंट नहीं है, सेकंड थ्योरम सर्कल के अंदर एक पॉइंट आ रहा है, थर्ड एक से ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं। सो कितने पॉइंट आ रहे हैं सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 1, है ना? सो कौन सा थ्योरम यूज करना है? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। सो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको बोलता हूँ, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल ऑफ ऐसे वो सम न्यूमरेटर अपॉन z माइनस a d ऑफ z इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ ए। इसको याद रखने में सिंपल है, ओके। ये g ऑफ z है ना, इसमें ये होता है न्यूमरेटर और नीचे क्या होता है, इसको ऐसे ही कंपेयर करो, एफ ऑफ z अपॉन z माइनस ए, ओके। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। सो इफ आई कंपेयर विद दिस कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, व्हाट इज माय न्यूमरेटर? एफ ऑफ z मतलब न्यूमरेटर, तो मेरे पास न्यूमरेटर क्या है g ऑफ z में, व्हाट इज माय न्यूमरेटर? What is my numerator in given example? z square plus 1. Z square plus 1। A पॉइंट क्या होता है, ये A क्या होता है? जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, तो कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है? 2, तो आपको ये कंपेयर करके भी दिखाई देगा। हाँ, सो A इज व्हाट? 2। तो आपको क्या चाहिए? व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 2 ना। सो कैलकुलेट, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन, integral of g of z dz, that is nothing but integral of z square plus 1 upon z minus 2z by Cauchy integral formula. This is equal to 2 pi i multiply by f of a की वैल्यू क्या है? 2। so f of z is this, तो f of 2 क्या आएगा? what is f of 5? so what is final answer? 10 pi। इतना ट्रिवियल है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस का। सेकंड केस, मॉड z इक्वल टू 1 है। चलो पहले ड्रॉ करते हैं, मॉड z इक्वल टू 1 है। सेकंड केस, मॉड z इक्वल टू 1 क्या है बेसिकली? ये सर्कल विद सेंटर व्हाट, रेडियस व्हाट, सेंटर इज 0,0, रेडियस इज 1। सो ये 0, ये 1, तो इतना ही होगा, है ना? दिस इज पॉइंट 1, ओके। एंड आपका फंक्शन क्या है? ऊपर दिखाता हूँ फिर से मैं, फंक्शन क्या है? g ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1। दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 2। अभी z इक्वल टू सर्कल के अंदर है क्या? z इक्वल टू सर्कल के अंदर है क्या? No. नहीं है। तो आपको सेकंड केस में क्या मिल रहा है? सेकंड केस में ये जो आपका गिवन g ऑफ z है, दिस गिवन g ऑफ z, दिस g ऑफ z इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड एंड, ठीक है, इनसाइड बोला तो भी ना, इनसाइड दिस सर्कल और इनसाइड द कर्व और सर्कल मॉड z इक्वल टू 1। इसको कर्व भी बोल सकते हो, कर्व ही बोलो, इनसाइड द कर्व मॉड z इक्वल टू 1। इन सारे पॉइंट्स पे वो एनालिटिक आ रहा है। सो व्हाट दिस इंप्लाइज, कौन सा थ्योरम होगा? अभी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तो कौन सा थ्योरम यूज करना है मुझे? बाय कॉचीज थ्योरम। दोनों में डिफरेंस है, कॉची इंटीग्रल, ओनली कॉची, बाय कॉची थ्योरम। क्या आंसर होगा? व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ g ऑफ z dz? इसका इंटीग्रल क्या आएगा डायरेक्टली? क्या होगा आंसर? 0। अगर वो सारे पॉइंट पे एनालिटिक है तो 0 आएगा,
ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं, बस रीजन चेंज होता है, फंक्शन वही है। एक केस में एक पॉइंट अंदर आ रहा था इसलिए आंसर 10 पाई आ रहा है, एक केस में पॉइंट अंदर नहीं था इसलिए आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही वो क्वेश्चन है। अभी मैं इसका एप्रोच बोलता हूँ, एक्चुअली आपको कैसे स्टार्ट करना है वो दिखता हूँ। पहले क्या करो, गिवन फंक्शन देखो, सो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 2, पहले वो देखो कि कौन से पॉइंट के लिए प्रॉब्लम है, उसके बाद रीजन ड्रॉ करो, फिर आपको समझ में आ गया इन दिस केस z इक्वल टू लाइज इनसाइड द सर्कल एंड ओनली वन पॉइंट इनसाइड द सर्कल, देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला यू विल गेट दिस। सो एफ ऑफ जेड मतलब न्यूमरेटर, हमेशा याद रखो ये इस फॉर्मूले में ये होता है न्यूमरेटर, ए मतलब वो पॉइंट जहाँ पे प्रॉब्लम है। सो एफ ऑफ जेड इज जेड स्क्वायर प्लस 1, ए इज 2 है ना। सो यूर गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 पाया एफ ऑफ 2 कैलकुलेट किया 5, योर आंसर इज 10 पाया। नेक्स्ट केस में मॉड जेड इक्वल टू 1, इन दिस केस जेड इक्वल टू 2, जो आपका प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है वो सर्कल के बाहर आता है, डज नॉट लाइन इन दिस सर्कल, मॉड जेड इक्वल टू 1, हेंस इट इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन द कर्व सी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स के लिए एनालिटिक है, इसलिए बाय कॉचीज थ्योरम योर आंसर इज 0। ओके, विल टेक वन मोर एग्जांपल इफ इट इज देयर, या अभी आप वन बाय वन जाते हैं। सो इवैल्यूएट इंटीग्रल ओवर सी वेयर सी इज द कंटूर मॉड और मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 1/2। तो पहले मुझे ये बोलो कि कौन कौन से पॉइंट के लिए ये फंक्शन आपको दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। सो दोज आर द पॉइंट्स वेयर योर डिनोमिनेटर इज 0, द पॉइंट्स वेयर योर डिनोमिनेटर इज 0 दैट बिकम द प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, है ना। तो z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन z प्लस 1 z माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन z इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। सो these are the 2 points where your function is not analytic। यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes or no? Is it clear? These are the 2 points where your function is not analytic। Clear है ये? Yes? बोलो, are you getting this or not? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट अभी कर्व ड्रॉ करते हैं, इनमें से कितने पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहे हैं वो हमें देखना होगा। 2 पॉइंट है जिस पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, उसमें से अगर दोनों पॉइंट बाहर जाते हैं तो आंसर 0 होगा, दोनों में से एक पॉइंट अंदर आता है तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला आप यूज कर सकते हो। दोनों अंदर आते हैं तो फिर कॉची इंटीग्रल फार्मूला भी यूज नहीं होगा, आपको रेसिड्यू थ्योरम के लिए जाना होगा जो मे बी नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा। ओके, सो सी इज द सर्कल, पहले ड्रॉ करते हैं, मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 1/2। सो ये क्या है बेसिकली 1 मतलब 1 प्लस 0 है, सो इट इज अ सर्कल सेंटर्ड एट 1,0, रेडियस इज हाफ, रेडियस इज हाफ। प्रॉपर ड्रॉ करो तो बात तो ही आपको समझ में आएगा। हाँ, अभी मुझे इतना बोलो, इन दोनों में से कितने पॉइंट्स अंदर आ रहे हैं, कितने बाहर आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, बोलो, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन। z इक्वल टू 1 एंड माइनस 1, इनमें से कितने पॉइंट्स अंदर है या क्या है, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन। One of the points is inside. So z equal to 1 is the point which is inside this curve. So in this case z equal to 1 which lies inside this circle, okay, and z equal to minus 1 is outside the circle. जो outside के पॉइंट्स हैं उनको देखने की जरूरत है ही नहीं। ओके, तो एक ही पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है, मतलब आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला से जाना होगा। व्हाट इज दैट कॉची इंटीग्रल फार्मूला, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस डी जेड इक्वल टू 2 पाया एफ ऑफ ए। ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ओके, सो व्हाट इज योर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आपका क्या होगा। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, मैं वो गिवन क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, ये पार्ट में एज इट इज लेता हूँ। नाउ यू टेल मी दी डिनोमिनेटर, ये मैं फिर से नीचे लिख रहा हूँ, 4z स्क्वायर जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है अभी, आपको ये सॉल्व करना है। नाउ कंपेयर करके मुझे बोलो व्हाट इज माय न्यूमरेटर। ए पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज दिस ए इज द पॉइंट विच लाइज इनसाइड द सर्कल। इसको छोड़ के जो भी है, z माइनस ए को छोड़ के जो भी आता है दैट बिकम द न्यूमरेटर। सो व्हाट इज द न्यूमरेटर इन दिस केस, 4z square 4 into 2 square minus z upon z plus 1। वेरी गुड। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4z स्क्वायर माइनस जेड अपॉन z माइनस 1 एंड z प्लस 1। ये हमने ऑलरेडी पहले देखा है, z स्क्वायर माइनस 1 क्या न्यूमरेटर है, z माइनस 1 एंड z प्लस 1। आपको मैंने पहले क्लियर किया था कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में ये जो नीचे का जो फैक्टर होता है, ये ऐसा फैक्टर होता है जिस पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। आपको पता है कि z इक्वल टू 1 में प्रॉब्लम है, z इक्वल टू 1 में प्रॉब्लम मतलब कौन से फैक्टर में प्रॉब्लम है, फर्स्ट फैक्टर में प्रॉब्लम है, करेक्ट है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद z प्लस 1, क्योंकि z प्लस 1 मतलब z इक्वल टू माइनस 1 रूट है उसका, z इक्वल टू माइनस 1 पॉइंट बाहर आ रहा है,
z इक्वल टू -1 पॉइंट आपका बाहर आ रहा है सर्कल के बाहर, तो उस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इसको छोड़ के जिस पे प्रॉब्लम है उस फैक्टर को छोड़ना है। जिस फैक्टर के वजह से पॉइंट आपका सर्कल के अंदर आ रहा है वो फैक्टर छोड़ के जो भी रिमेनिंग पार्ट है दैट बिकम द न्यूमरेटर। तो इस फैक्टर मतलब z-1 का जो रूट है, z-1 फैक्टर का जो रूट है 1 विच लाइज इनसाइड द सर्कल, तो इसको छोड़ के जो भी रहेगा दैट बिकम योर एफ ऑफ जेड। सो दिस इज माई एफ ऑफ जेड। तो यहाँ पे मेरा एफ ऑफ जेड क्या होगा 4z² प्लस जेड अपॉन जेड प्लस 1, सॉरी ये साइन प्लस ही था, 4z² प्लस जेड अपॉन जेड प्लस 1, दिस बिकम योर एफ ऑफ जेड। और कौन से पॉइंट के लिए प्रॉब्लम है 1 के लिए प्रॉब्लम है, तो a बिकम 1, तो 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 1, तो इसमें 1 पुट करो क्या मिलेगा ये 4 + 1 5 बाय 2 ना, सो 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय दिस, सो आई थिंक 5 पाई आई आंसर होगा, है ना। एफ ऑफ 1 इज 5/2, 2 पाई आई मल्टीप्लाई 5/2, योर आंसर इज 5 पाई आई। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया या ये पार्ट फिर से एक्सप्लेन करना है? ये जो मैं अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमेशा याद रखो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में ये जो नीचे का फैक्टर होता है ये ऐसा फैक्टर है जिसका रूट इट इज अ फैक्टर हुज रूट इज लाइज इनसाइड द सर्कल, तो जो भी रिमेनिंग होगा दैट बिकम योर एफ ऑफ जेड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. टेक वन मोर एग्जाम्पल, शायद उससे हो जाएगा ये, अभी इससे तो क्लियर होना ही चाहिए, ये भी ये कॉम्प्लेक्स होगा लग रहा है। ठीक है, सो इंटीग्रल z+4 अपॉन z² प्लस 2z प्लस 5, ओके। तो पहले इसके रूट्स कैलकुलेट करते हैं, इस ये 0 होता है तब प्रॉब्लम आएगा, वही मैंने लिखा है दिस गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक व्हेन दिस फैक्टर इज 0। व्हेन दिस फैक्टर इज 0 मतलब इसके रूट्स क्या है, ये आप कैलकुलेशन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये इसके रूट है ये और ये, ओके। तो इसका फैक्टर ये होगा z माइनस दिस 1 रूट, z माइनस दिस सेकंड रूट, ये उसके फैक्टर है, z माइनस दिस फर्स्ट रूट, z माइनस दिस सेकंड रूट, -1 -2i -1 + 2i, दिस आर द 2 रूट्स, ओके। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, z माइनस 2i, सेंटर क्या होगा 0,2, रेडियस इज 3/2, तो वो मैंने ड्रॉ किया। अभी आप मुझे ये बोलो इन दो पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स अंदर है कौन से बाहर है, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? क्लियर फोकस करके मुझे बोलो क्या होगा। यस, विच पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, विच पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, दैट इज व्हाट आई वांट ओनली। बोलो, या दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर है? यस, कैसे कैसे चेक करोगे आप ये? हाउ यू चेक दिस? तो उसके लिए मैंने नीचे रिजल्ट देखा लिखा है, ओके ओके। विल फोकस ऑन वन पॉइंट हियर, ओनली z इक्वल टू -1 + 2i लाई इनसाइड दिस सर्कल। कौन सा? ये पॉइंट -1 + 2i, -1 + 2i समवेयर हियर इज लाइज इनसाइड दिस सर्कल। शायद मैंने रिजल्ट दिया है क्या, उसका मॉडुलस कैलकुलेट करके भी जा सकते हैं या आप डायग्राम से भी जा सकते हो। और सेकंड पॉइंट आपका क्या है -1, बोलो ना सेकंड पॉइंट क्या है आपका, ये आपको दिखाई दे रहा है ना -1 2i, या इसका मॉडुलस चेक करके भी आप जा सकते हो, ओके। दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन, बट ये इजीली ऑब्जर्व हो रहा है तो करने की ज़रूरत नहीं है। -1 + 2i, ठीक है, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ये आपने रियल जैसे प्लॉट करना है, रियल में x = -1 y = 2, x = -1 y = 2। सेकंड पॉइंट कहाँ पे आएगा बोलो, x = क्या लेना है -1, y = व्हाट बोलो, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा -1 - 2i, -1 यहाँ पे, -2 कहाँ पे आएगा यहाँ पे ना, समवेयर हियर, करेक्ट है? Yes, sir. दिस इज -1 - 2i, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, दिस इज इनसाइड द सर्कल, ओके। एंड नाउ just by observing this, only this point lies inside the circle, okay, by Cauchy integral formula your answer is 2 pi I f of a। हाँ, अब एक ही पॉइंट अंदर आ रहा है, कौन सा पॉइंट अंदर आ रहा है, ये अंदर आ रहा है, उसका फैक्टर कौन सा है, सॉरी ये अंदर आ रहा है, -1 + 2i ये अंदर आ रहा है, उसका फैक्टर कौन सा है, ये फैक्टर है। तो इस फैक्टर को डिलीट करो, जो भी रिमेनिंग है
दैट बिकम योर फंक्शन. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज माय फंक्शन हियर? न्यूमरेटर क्या है मेरा? फिर से सुनो, दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, तो उसका जो फैक्टर होगा वो मुझे डिलीट करना है, जो भी रिमेनिंग होगा दैट बिकम माय फंक्शन, दैट बिकम माय एफ ऑफ जेड. व्हाट इज माय एफ ऑफ जेड हियर? जेड प्लस 4 अपॉन व्हाट? जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 कैन बी रिटर्न लाइक दिस. ये आप कैलकुलेट में कर सकते हो, रूट कैलकुलेट करो, z माइनस फर्स्ट रूट इंटू जेड माइनस सेकंड रूट. अभी इनमें से ये फैक्टर आपका सर्कल के अंदर आ रहा है, तो मुझे ये फैक्टर नहीं लिखना है. सो व्हाट इज माय रिमेनिंग फंक्शन? z प्लस 4 अपॉन, बोलो, z माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 2i. क्योंकि इस फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टर बाहर जा रहा है, इसलिए मैंने वो रखा है. जो फैक्टर आपका सर्कल के अंदर है वो मैंने डिलीट किया. नाउ दिस बिकम माय न्यूमरेटर एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या जाएगा? z माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2i. ये मुझे ऐसे लिखना है. दिस इज माय गिवन फंक्शन, दिस इज माय g ऑफ z. इसमें से ये बन जाएगा आपका f ऑफ z और ये बन जाएगा आपका z माइनस a. दिखाता हूँ मैं आपको नीचे. सो वही मैंने किया है, z माइनस, जिस फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो मैंने नीचे लिखा है, ठीक है. हाँ, और जिसमें प्रॉब्लम है वो ऐसे लिखा है. तो ये मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया है. नाउ दिस बी होल बिकम माय गिवन f ऑफ z, ठीक है. सो दिस इज माय f ऑफ z. एंड कौन से पॉइंट के लिए प्रॉब्लम थी? -1 प्लस 2y के लिए प्रॉब्लम थी. सो दैट बिकम माय a. तो f ऑफ z में z इक्वल टू ये पुट करो, सो यू विल गेट दिस a प्लस 4 a माइनस -1 माइनस 2i. सॉल्व करो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. 2πi से मल्टीप्लाई करो, दैट बिकम द फाइनल आंसर. समझ में आ रहा है ये? एनी डाउट इन दिस पार्ट? या फिर से एक्सप्लेन करना, आप मुझे वैसे बोल दो. एनी डाउट? मे बी हियर विल स्टॉप टुडे. मैं ज़्यादा कुछ ये नहीं करना चाहता. नेक्स्ट लेक्चर में वैसे ये हो जाएगा. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन? रिपीट करना है, सॉल्व करना, आप मुझे बोल दो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. एनी डाउट? क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसको मैंने फैक्टराइज किया, कैल्शियम रूट्स कैलकुलेट करो. ओके, मैं अगर रफली ड्रॉ भी करता हूँ तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है, ये पॉइंट सर्कल के बाहर आ रहा है. इसका फैक्टर मतलब क्या होता है? जो भी रूट आता है ना, z माइनस वो रूट लिखो, दैट बिकम फैक्टर. तो इसका फैक्टर होता है z माइनस -1 प्लस 2i. ये मुझे डिलीट करना होगा, ठीक है, यहाँ से. सो क्या रहेगा मेरे पास? z प्लस 4 अपॉन z माइनस दिस सेकंड फैक्टर -1 माइनस 2i. ये फैक्टर जिससे प्रॉब्लम हो रही थी वो नीचे लिखना है बस आपको. देन इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला. ओके, सो दिस न्यूमरेटर बिकम f ऑफ z, दिस बिकम z माइनस a. सो योर आंसर इज 2πi f ऑफ a. ओके, तो ये जो f ऑफ z था उसमें z की जगह पे a पुट करो. a की वैल्यू क्या है? -1 प्लस 2i. सिंपल कैलकुलेशन है. एंड मल्टीप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू 2πi. समझ में आ रहा है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इससे ट्रिवियल ही होंगे आपको क्वेश्चंस. ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स में दिया है आपको. जो भी ले रहा हूँ वो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है. ट्रिवियल क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ, बोलो. सर, अगर इजीली प्लॉट करके नहीं समझ में आ रहा है, अगर पॉइंट इनसाइड द फिगर है या फिर बाहर है, तो कैसे करेंगे सर? एक वे होता है, ठीक है भाई, उस पर वैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, इसलिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा था. सॉरी, नीचे चला गया. But it is easy when you directly check from a graph. हाँ, मैं दोनों में से एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो हियर विल स्टॉप. दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन स्टे ऑनलाइन. मैं बस एक पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड देन विल स्टॉप. ओके, अदर्स कैन लीव. अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लीव कर सकते हो. ओके, सी, अब इसमें आपको ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है. इन दोनों दिस आर द 2 पॉइंट्स वेयर योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ओके, डायग्राम भी क्लियर है कैसे ड्रॉ करनी है? यस सर. अभी मुझे आप ये बोलो, इसकी रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि वो इजी है. रेडियस 1.5. 3/2 ना? हाँ, 3/2 मतलब व्हाट? 1.5 समथिंग, ठीक है. एक से ज़्यादा है, मुझे वो सुनना चाहिए. अभी आप देखो, हाँ, अभी मुझे देखना है कि ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है.
-1 -2i, इसको प्लॉट करते समय रियल पार्ट क्या है, पॉइंट लेना है बस, रियल पार्ट क्या है -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -2। तो -1 -2 पॉइंट मुझे ड्रॉ करना है। -1 पॉइंट यहाँ पे होता है, -2 पॉइंट यहाँ पे होता है, सॉरी हाँ ये पहला पॉइंट है। -2 पॉइंट कहाँ पे होगा, रेगुलर रियल लाइन पे नीचे आएगा ना, ये -1 होगा, ये -2 होगा। सो -1 पॉइंट, -2 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये पार्ट तो क्लियर हो गया। ये कैसे प्लॉट किया है मैंने, नाउ दिस इज व्हाट -1 -2i, ये तो क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। हाँ अभी देखते हैं ये पॉइंट -1 + 2i, -1 + 2i मतलब कौन सा पॉइंट है, -1, 2। अभी देख लेते हैं, -1 मतलब ये, 2 मतलब ये। तो अभी आप बोलोगे कि सर ये कैसे क्लियर होगा कि ये सर्कल के अंदर ही है। आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, ये सर्कल के अंदर, क्योंकि अगर आपने मतलब फॉर एग्जांपल आपने मतलब रॉन्ग डायग्राम ड्रॉ की तो मे भी आपको आउटसाइड दिखाई देगा, तो वो कैसे चेक करना है। सी ये जो सर्कल ये 2 के अबाउट है एंड ये डिस्टेंस कितना है, 1 से ज़्यादा है। ये डिस्टेंस अगर 1 से ज़्यादा है, करेक्ट ना, और आपको -1 पे ही ऊपर जाना है, तो ये सर्कल के अंदर ही होगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ क्लियर हो गया ना आपको। ये डिस्टेंस आपका 1 से ज़्यादा है, 3.2 डिस्टेंस है। तो -1 पॉइंट पे अगर मैं ऊपर कहीं पे भी जाता हूँ, ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स है सारे सर्कल के अंदर ही आएंगे ना। सो दिस इज द इजिएस्ट वे टू चेक। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ये यही वे ठीक है। और कुछ डाउट्स है?